Hello students, I am your teacher Tanha ma'am, and today we are going to study the second chapter of your textbook Beehive. Now the second chapter is titled The Sound of Music. The sound of music is divided into two parts. First is the Evelyn Glennie's listens to sound without hearing, and second part is about the great Shehnai player of India, the Shehnai of Bismillah Khan. Now in this video we are going to deal with the first part, that is about the Evelyn Glennie. Now before I give you more details about Evelyn Glennie, let us understand this about who has written this chapter. Actually, there is a freelance writer, a broadcaster, or we can call a reporter named Deborah Cowley, and she has interviewed many known personalities, female personalities, and this part of a chapter is taken from her interview of Evelyn Glennie. Now, Deborah was grown up in Toronto, and in this part this is a story, it's a real life story of Evelyn Glennie, who has become deaf, but today she is one of the famous most sold celebrity, most sold percussionist. Now what is percussionist? Percussionist means one who play musical instrument like drum, or we can say xylophone, tabla. They are called percussionist. Now here we will, in the story of Evelyn Glennie, we would come to know that in spite of having lots of difficulty in her life, she had fought with the difficulty and had pursued her dream of dedicating her life to the music. You will shocked to know one fact about Evelyn is that she is deaf. Of course, by birth she was not deaf. Gradually she has become deaf, but in spite of becoming deaf, she learned music, and today she is giving orchestral performance as well as solo performance around the world. She has achieved much more, 2 or 3 times more than the people of her age. Now let's see the story and you will come to know how brave the girl was. Evelyn was basically a Scottish girl. Scottish girl, you know that there's a part of England that is called Scotland, and she was coming from the village of Scotland. Yeah, before you read, we'll read that first so that we can understand what is the story about. God may have taken her hearing. God may have taken hearing of Evelyn, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels. We can hear the music, but she can feel the music in the different parts of her body, far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. Now the story starts like this. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Story starts with Evelyn. She has registered herself with the most prestigious Royal Academy of Music to learn music, and first time she was going to the academy for learning music lesson. She had gone to London, and in the London she was standing at the underground metro train platform, and it was a rush hour. Rush hour means people were rushing to their offices, and that's why people were literally jostling each other, that is pushing roughly to each other so that they can get the position, they can get a place to sit in the underground train. A slight girl, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है स्लाइट गर्ल का, दैट इज स्मॉल एंड थिन. शी लुक्स वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन, younger than her 17 years. She was at that time she was 17 years old, but she looked younger than her age.
was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. She cannot hear the sound of the train, but she can feel the vibration. And when she heard the vibration of train coming on the platform, she was nervous. At the same time, she was excited that she was going to fulfill her dream of learning music. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. And daunting means frightening, afraid, enough for any teenager fresh from a Scottish farm. And it was any teenager would get afraid to go to such a great institute of music. And other than that, she was not a resident of London, she was coming from the Scotland, and that too, and from the small village of Scotland. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. For a normal human being, for us, even it is very tough to understand music and learn music, but still a normal person could manage to learn the music. But for a girl like her, who was totally deaf, profoundly मतलब होता है totally deaf, completely deaf, it was a very big challenge for her, for this aspiring means one who wanted to become musician, learning musician, उसके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज थी. एवलिन ग्लेनिंग्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ऐसा नहीं था कि वो बचपन से सुन नहीं पाती थी. जो उसका डेफनेस था, वो डेफ बनी, वो ग्रेजुअल हुआ. कैसे हुआ देखते हैं. एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक फ्रॉम चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड में भी पियानो वगैरह म्यूज़िक सीख रही थी. उस वक्त ऐसा हुआ कि उसकी मदर ने रिमेंबर किया कि भाई एवलिन, कैसे उनको पता चला कि एवलिन ग्रेजुअली डेफ हो रही है. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एक्चुअली उसका स्कूल का फंक्शन था और वहाँ पे बच्चे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे. उसमें एवलिन का टर्न आया टू प्ले द पियानो. वहाँ से अनाउंसमेंट हुई उसके नाम की, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई. एंड ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही नहीं है. सेज इज़ाबेल ग्लेनी, उसकी मदर का नाम था इज़ाबेल ग्लेनी, और उसने कहा कि जब वो 8 साल की, तब ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब अनाउंसमेंट हुई तो एवलिन ने सुना ही नहीं, वो खड़ी नहीं हुई. फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. लेकिन डेफ होना बड़े शर्म की बात थी उस एवलिन के लिए, क्योंकि यदि वो किसी को पता चला कि वो डेफ हो गई है तो उसका म्यूज़िक की ट्रेनिंग रुक जाएगी. इसलिए एवलिन ने काफ़ी वक्त तक हाइड किया, कंसील किया दूसरों से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेफ हो रही हैं, बहरी हो रही हैं. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब धीरे धीरे उसके जो मार्क्स थे, एग्ज़ाम्स के मार्क्स, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगे. डिटेरियोरेटेड मतलब स्टार्टेड टू बिकम पुअरर. धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस था, एजुकेशनल परफॉर्मेंस, वो पुअर होता गया. इसलिए फिर हेडमास्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. तो हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को एक दिन बुलाया और कहा कि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखा दीजिए. और फिर उसके पेरेंट्स उसको स्पेशलिस्ट के पास ले गए. तब जाके पता चला कि हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास बताया तब जाके पता चला कि एवलिन का जो हियरिंग था, सुनने की जो ताकत थी, वो धीरे धीरे वीक हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी में, उसके ईयर्स में नर्व डैमेज हो गई थी. they were advised, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि she should be fitted with the hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, said Evelyn. और डॉक्टर उनको एडवाइस दी कि भाई आपकी बेटी है, वो नॉर्मल स्कूल में तो नहीं पढ़ सकती, एक काम कीजिए, पहले तो उसको सुनने के लिए जो मशीन्स आते हैं, हियरिंग एड्स, वो पहनाइए और उसको किसी डेफ की स्कूल में भेज दीजिए, जो होती है ना बहरे लोगों की स्कूल,
वहाँ पे उसको डेफ और डम्ब स्कूल होती है वहाँ पे भेज दीजिए। एवलिन के लाइफ में अचानक सडन ये चेंज आया, ये प्रॉब्लम आया, तो शी बिकम एक्सट्रीमली सैड। वो बोलती मेरे लिए सडन ब्लैकनेस हो गई, जैसे कि मेरी लाइफ में से जो लाइट थी वो चली गई। शी फेल्ट सो शॉक्ड, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने तय किया था कि मैं अपना म्यूज़िक छोड़ूंगी नहीं। शी वॉज डिटरमाइंड, वो अड़ी रह गई टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो तो तय किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बहरी भी क्यों ना हो जाऊँ टोटली, मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ जीना छोड़ूंगी नहीं, और साथ में मैं अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में वो कंटिन्यू ही करूँगी। मैं तो म्यूज़िक लर्न करके ही रहूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन। अच्छा, ये ज़ाइलोफोन क्या होता है? देखो बाजू में पिक्चर दिखाई है, ऐसा होता है ज़ाइलोफोन। और उसकी कुछ अच्छी वाली कलर इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है ज़ाइलोफोन। देखिए मैं आपको उसकी इमेज बताती हूँ। या ये दिख रही है आपको ज़ाइलोफोन की इमेज? उसमें भी स्पेसिफिकली जो ये बड़ा सा ज़ाइलोफोन है जो आपकी राइट हैंड साइड है, वैसा बड़ा सा ज़ाइलोफोन वो एवलिन आगे जाके सीखने वाली है, और वो आगे जाके वही इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगी, राइट? या सो उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। उसने डिसाइड किया कि मैं ज़ाइलोफोन प्ले करना, बजाना सीखूंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. सभी टीचर ने, म्यूज़िक टीचर्स ने ना बोले कि नहीं तुम म्यूज़िक नहीं सीख सकती, तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखती, तुम ज़ाइलोफोन नहीं सीख सकती। लेकिन एक जो परकशनिस्ट ड्रमर थे रॉन फॉर्ब्स, उनको लगा कि नहीं, ये लड़की में रियली पोटेंशियल है, एबिलिटी है कि ये ज़ाइलोफोन प्ले कर सकती हैं। सो परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने उसका पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी मार्क की। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया कि 2 बड़े से ड्रम थे और दोनों ड्रम को अलग अलग जो नोट्स होती है, हाई नोट्स और लो नोट्स होती है, उस पर रखा। और फिर एवलिन को बोला कि आपको सुनना नहीं है क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पाओगी, उससे अच्छा है आप अपने बॉडी में म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस है उसको फील करो। तो क्या कहते हैं वो एवलिन को? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। दूसरी तरह से उसको सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और जैसे रॉन फॉर्ब्स ने एडवाइस दी उस तरह से उसने म्यूज़िक को फील करना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि जब वो ड्रम बजा रहे थे, जब भी वो ड्रम की हाई नोट्स बजाते थे, तो उनके बॉडी का वेस्ट के ऊपर का जो पार्ट है, वेस्ट मतलब जो हमको जिसको कमर बोलते हैं, वेस्ट के ऊपर का पार्ट है, वहाँ पे उनको हाई नोट्स फील होते थे, और वेस्ट के नीचे के पार्ट में उनको लो नोट्स फील होते थे। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. और फोर्ब्स ने वही उसी तरह से अलग अलग ट्यून्स, अलग अलग नोट्स, हाई नोट्स, लो नोट्स, मीडियम नोट्स प्ले की, और एवलिन ने फील किया कि हर एक नोट उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं। उनको सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन म्यूज़िक का वाइब्रेशन वो अपने पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट में फील कर सकती हैं। Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो उसको ऑफकोर्स गॉड ने उसका हियरिंग ले लिया था, शी वॉज नॉट एबल टू हियर, लेकिन उससे भी बड़ी एक गिफ्ट दी कि हम लोग सिर्फ म्यूज़िक सुनते हैं, शी कुड फील द म्यूज़िक, और वो भी अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। और फिर एक बार उनको पता चल गया कि हाँ भगवान ने उनको ये क्वालिटी दी है, तो फिर उन्होंने फर्म डिटर्मिनेशन से, श्योर एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन से काम करना शुरू किया, और आज वो जो कुछ भी है, शी इज़ वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट, इट इज़ ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क।
शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद उन्होंने शायद पीछे मुड़ के ही नहीं दिखा, ना ही अपने आप को कभी अपसेट होने का चांस दिया उन्होंने। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 उन्हें छोटी सी उम्र में ही म्यूज़िक प्ले करना सीख लिया। और यूनाइटेड किंगडम में जो ऑर्केस्ट्रा था यंग लोगों का, उसके साथ वो यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग सिटीज़ में जाने लगी, वहाँ कॉन्सर्ट में पार्ट लेने लगी। एंड जब वो 16 साल की हुई, बाय द टाइम शी वाज 16, शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्सपर्ट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग म्यूज़िक में लेनी चाहिए और म्यूज़िक ही अब मेरी लाइफ है। सो शी audition means she gave a short performance so that she could be judged। तो उन्होंने ऑडिशन दिया द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो इंग्लैंड की, लंदन की बहुत ही फेमस नंबर 1 म्यूज़िक एकेडमी है, वहाँ एडमिशन के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हाइएस्ट मार्क रिकॉर्ड अब तक बनाया है, उसमें से एक रिकॉर्ड है एवलिन का। So she gradually moved from orchestral work to solo performances। इनिशियली तो वो ऑर्केस्ट्रा में, मतलब कि जहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स सब लोग प्ले करते हैं और वो भी खुद प्ले करती है ज़ाइलोफोन, उसमें पार्ट लेती। लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने अपना सोलो परफॉर्मेंस, दैट इज़ प्लेइंग ओनली ज़ाइलोफोन ऑन हर ओन। और सिर्फ वो ज़ाइलोफोन नहीं प्ले करती, आपको बहुत ही ताज्जुब होगा ये जान के, यू विल फील रियली सरप्राइज कि एवलिन कुड प्ले मोर देन 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखे और फिर वो सोलो परफॉर्मेंसेस स्टेज पे देने लगी। इवन आपको यदि उनका म्यूज़िक सुनना हो तो यू कैन मेक अ सर्च ऑन द यूट्यूब एंड कैन लिसन हर म्यूज़िक। उनकी कॉन्सर्ट भी आप सुन सकते हो, सो दैट यू वुड कम टू नो दैट विद अ लिमिटेड थिंग्स इन हर लाइफ, विद द लिमिटेशन कि वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो इतना अच्छा म्यूज़िक समझती हैं और आज भी प्ले करती हैं। या So, at the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। और अपने 3 साल की वहाँ के कोर्स पे, रॉयल एकेडमी के कोर्स में जितने भी अवार्ड्स थे, वो सारे अवार्ड्स एवलिन ने जीत लिए थे। एंड फॉर दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। यदि आप एवलिन को उनके सामने अप्रिशिएट करो, उनको बोलो कि वाह आपने क्या अचीव किया, कोई और अचीव नहीं कर सकता, तो शी वुड से दैट नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा हीरोइक परफॉर्मेंस नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कोई और नहीं कर सकता है। वो कहती है कि मेरी जो अचीवमेंट है दैट इज़ गॉड्स गिफ्ट एंड माई हार्ड वर्क, जो कोई और भी अचीव कर सकता है। If you work hard and know where are you going, you will get there। वो बोलती है, बहुत सिंपल है उनका लॉजिक। वो बोलती है आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी मंजिल पता है, आपको अपनी डेस्टिनी पता है, और उसके लिए यदि आप हार्डवर्क करते हो देन आप 100% श्योरली यू विल गेट सक्सीड। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments। आज वर्ल्ड में वो टॉप लेवल पे हैं, उन लोगों में जिनको मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, वे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की मास्टर ही, वैसे कुछ चुनिंदा लोगों में भी वो टॉप पर है। एंड शी कुड प्ले 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड शी इज़ हैविंग हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। इट मीन्स कि उनके जो शोज होते हैं वन बाय वन इंटरनेशनल लेवल पे उनके शोज़ होते ही रहते हैं, बिकॉज हु वुड नॉट सी, क्योंकि सबके लिए एक सरप्राइज की बात है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, वन कुड से दैट कि ये जो मौका होता है उनको सुनने का, वो बहुत ही रेयर होता है। नो वन वुड डिनाई और नो वन वुड रिफ्यूज़ टू हैव सच a pleasure of listening and seeing her playing the music। So उनके हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होता है, उनके बहुत सारे शोज़ होते रहते हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। जब वो लाइव शोज़ करती हैं, या यूट्यूब पे भी आपको उनके लाइव शोज़ देखने को मिलेंगे, आप जिस तरह से देखेंगे कि कैसे वो फैसिनेटिंग और क्यूरियस है कि एवलिन जिस तरह से एफर्टलेसली बिना सुने म्यूज़िक बजाती है, वो रियल में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इन आवर 2
इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जो यहाँ पे जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, मैंने कहा ना आपको कि ये जो है एवलिन का चैप्टर या एवलिन की स्टोरी, उस वो इंटरव्यू लिया है डेबोरा काउली ने। वो इंटरव्यू का पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। तो डेबोरा बोलती हैं कि हमने 2 घंटे का हमारा डिस्कशन हुआ, बातें हुई, इंटरव्यू हुआ, उसमें इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इवन तो वो सुन नहीं पाती हैं, लेकिन लिपसिंग से वो उसने एक सारा वर्ड मैं जो बोल रही थी वो पकड़ लिया और हर एक का उसने आंसर दिया। फर्दर एवलिन कहती है मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ। वो बोलती है कि वैसे तो मैं नॉर्मली सबके लिपसिंग पढ़ लेती हूँ, लेकिन जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है, मतलब जिनकी एकदम घनी दाढ़ी बोलता है ना हम लोग, रडी पे बालों चिन पे जो हेयर्स गो होते हैं बियर्ड, या जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है, वहाँ पे कभी कभी मुझे ट्रबल हो जाती है उनके लिपसिंग पढ़ने में, क्योंकि वो क्लियरली उनके लिप्स दिखते नहीं हैं। इट इज़, देखो ये एवलिन परफॉर्मेंस दे रही है, यंग एवलिन। या इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो बोलती हैं स्पेशली द आइज़। वो बोलती है सिर्फ मैं लोगों को लिप्स नहीं रीड करती हूँ, उनका पूरा फेस, उनकी आइज़ देखती हूँ, जिनसे मुझे उनके एक्सप्रेशंस के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पता चलता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। वो फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलती हैं और प्लस उनके बोलने में स्कॉटिश एसेंट आती है। अब ये एसेंट क्या है? एसेंट, लिल्ट मतलब एसेंट, वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम लोग में भी होता है ना, गुजराती तो हम सब बोलते हैं, लेकिन गुजराती या हिंदी बोलते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो अलग टोन आता है। जैसे गुजराती में बोला जाए तो गुजराती में अहमदाबाद गुजराती जो बोलते हैं वो जो लैंग्वेज या वर्ड्स यूज़ करते हैं, टोन यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट होता है। जबकि महसाना के लोग होते हैं वो बोलते वो अलग होता है। साउथ गुजरात के जो बोलते हैं वो अलग होता है। जैसे कि हम हिंदी की बात करें, हिंदी में भी कई तरह की हिंदी होती। ब्रिजवासी की हिंदी होती है, ब्रिजवासी होती है, वृंदावन की हिंदी अलग होती है, अवधी अलग होती है। सो कई तरह की लैंग्वेज में भी टोनेशन होता है। वो बोलती इंग्लिश थी लेकिन उसमें स्कॉटिश एसेंट आता था। वो फर्दर बोलते हैं माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलते 11 साल की मैं हुई वहाँ तक तो मैं सब सुन पाती थी, इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन और सरप्राइजिंग बात, शॉकिंग बात एवलिन के बारे में ये थी कि चलो वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाती, वो तो सबको समझ में आता है क्योंकि वो उसने इंग्लिश 11 साल की उम्र तक सुना है, लेकिन उसने इतना अच्छा फ्रेंच बोलना या इतना अच्छा बेसिक जापानीज़ बोलना कहाँ से सीखा? तो ये सब लैंग्वेज तो बाद में उन्होंने सीखी है उनकी डेफनेस आने के बाद। सो इट वी कुड से दैट शी वॉज रियली स्किल्ड, एबल थी। As for music, she explains, it pours through every part of my body. आप कहोगे, उनको पूछोगे भी म्यूज़िक कहाँ से सीखते हो, कैसे इतना अच्छा म्यूज़िक समझते हो और बजाते हो? तो शी सेज के मेरे पूरे बॉडी में, हर एक बॉडी का पार्ट है, हर एक जो बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो इवन मेरी स्किन, वो सब में मुझे वाइब्रेशंस म्यूज़िक फील होता है। वो बोलते हैं इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स मीन्स कॉजिंग अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि वहाँ पे उनको टिंगलिंग होता था। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, सिर्फ स्किन पे भी नहीं, उनके चिक के जो बोन्स हमारे होते हैं साइड लॉक्स में जहाँ पे बोन्स होते हैं वहाँ पे, और इवन मेरे हेयर में भी मुझे टिंकल होता है, जैसे गुदगुदी सी होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. आप उनको रियल में xylophone प्ले करते देखना, xylophone हाथ से नहीं प्ले होता है, xylophone स्टिक से प्ले होता है। और बोलते जब मैं बजाती हूँ तो स्टिक से मेरी उंगलियों में म्यूज़िक, उसका साउंड, उसका वाइब्रेशन पास होता है और मुझे पता चलता है कि पर्टिकुलर बार को बजाने से कैसा म्यूज़िक बज रहा है।
By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. और वो बोलती है जब मैं ड्रम पे झुक के जब ड्रम बजाती हूँ तो जो ड्रम का रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मतलब एको, एको वो मुझे सुनाई देता है मेरे पूरे बॉडी में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो वो अपने शूज़ निकाल के, मोस्ट ऑफ वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं जिससे म्यूज़िक का वाइब्रेशन उनको सुनाई दे। तो बोलती है वुडन प्लेटफॉर्म पर मैं अपने शूज़ निकाल के बैठती हूँ जिससे जो वाइब्रेशन होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, जो वो बजा रही हो, दूसरे परकशनिस्ट बजा रहे हो, वो उनके फीट से लेकर लेग्स तक पहुंचता है और वो म्यूज़िक वहाँ से भी, अपने पैर से भी म्यूज़िक फील कर सकती हैं। फर्दर, नॉट सरप्राइजिंग, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और एक बार यदि एवलिन को आप सुनोगे तो यू विल रियली फील वेरी हैप्पी। डिलाइट मीन्स अट्रैक्ट्स, makes happy her audience. In the year 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. उनको कई सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, उनको दिए गए हैं और उनमें से एक है 1991 में उनको दिया गया था, दैट इज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसने दिया था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो एक बहुत बड़े परकशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं गॉड, एवलिन के बारे में कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. वो कहते हैं हम तो म्यूज़िक सुनते हैं लेकिन वो तो फील करती है और बहुत ज़्यादा हम कभी फील ना कर पाए उतना डीपली वो म्यूज़िक फील करती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। एवलिन बोलती हैं कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ। अच्छा, ये वर्कोहॉलिक क्या हुआ? वो लोग जिनको काम करना बहुत पसंद है, वो कंटिन्यूसली अपने आप को एक या दूसरे काम में बिजी रखते हैं। इसीलिए एवलिन के नॉन स्टॉप कॉन्सर्ट कहीं ना कहीं चलते रहते हैं और जब वो प्रोफेशनल कॉन्सर्ट नहीं करती तो सोशल वर्क करती हैं। अपने कॉन्सर्ट के द्वारा वो फंड इकट्ठा करती है जिससे जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए काम किया जाए। सो आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। बोलते जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उससे ज़्यादा वर्क मेरे पास होता है या उससे ज़्यादा मैं वर्क करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मुझे इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कभी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलता है, कभी नेम फेम मिलता है, कभी लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो बोलती हूँ मैं काम करती हूँ लेकिन सामने मुझे उतने ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, अपार्ट फ्रॉम द कॉमर्शियल कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन। आई थिंक तुम्हें, आप लोग कॉन्सर्ट के बारे में तो पता ही होगा। कॉन्सर्ट मीन्स द म्यूजिकल शो, म्यूजिकल लाइव शो जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सर्ट। या सो वो कहती हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। She also gives high priority to classes for young musician. Even concert और पैसे कमाने के अलावा, सोशल वर्क करने के अलावा भी वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको वो सिखाती हैं म्यूज़िक। एंड रिचलिन ऑफ Beethoven Fund for Deaf Children says, एनी रिचलिन है प्रेसिडेंट बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो डेफ चिल्ड्रन का फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड, उनकी जो प्रेसिडेंट है एन रिचलिन, वो कहती है एवलिन के बारे में, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बोलती है डेफ चिल्ड्रन के लिए तो एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और एवलिन की अचीवमेंट, स्ट्रगल और अचीवमेंट की वजह से ही आज जो डेफ चिल्ड्रन हैं वो कहते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो चुका है कि वो कहते हैं कि हम कुछ भी कहीं पे भी जा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जब एवलिन बन सकती है तो हम भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं। सो शी हैज़ बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस एंड दे पीपल आर नॉट डिप्रेस्ड और दे पीपल आर नॉट सैड। इन फैक्ट दे आर एनकरेज्ड बाय एवलिन स्ट्रगल एंड अचीवमेंट।
Evelyn Glennie has already accomplished more than most पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन अपनी लाइफ में उसकी ही एज के जो लोग जितना अकम्प्लिश कर सकते हैं म्यूज़िक फील्ड में या कोई भी फील्ड में, उससे 2 गुना ज़्यादा वो पा चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। नॉर्मली ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, म्यूजिशियंस म्यूज़िक प्ले करते हैं और स्टेज के बीच में खड़े रहकर जो सिंगर्स होते हैं वो गाते हैं। मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सिंगर्स को देते हैं, म्यूजिशियंस को नहीं। लेकिन एवलिन ने खुद म्यूज़िक को और स्पेसिफिकली म्यूजिशियंस को इतना रिस्पेक्ट दिलाया है कि कब के वर्ल्ड में सिर्फ म्यूज़िक शोज़ होते हैं जहाँ सिंगर्स नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूजिशियंस म्यूज़िक प्ले करते हैं और लोगों को चीयरफुल करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने अपनी म्यूज़िक से लोगों को बताया है कि सिर्फ सिंगर ही नहीं लेकिन म्यूजिशियन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के फील्ड में। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप मतलब कोई भी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र हो, या ब्लाइंड हो या डेफ हो या मेम्ड हो, कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो, उन्होंने हर एक को इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, and not the least she has given enormous pleasure to millions। उन्होंने ना ही सिर्फ जो फिज़िकली चैलेंज मेंटली चैलेंज लोग हैं उनको इंस्पिरेशन दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट भी दिया है, उनको प्लेजर दिया है, उनको खुशियाँ दी हैं थ्रू हर म्यूज़िक। ओके, so this is the chapter, or this is a story, or you can say short story, short biography of the great percussionist Evelyn Glennie. Now in my next lecture we will deal with the story of Shehnai Wadak, famous Hindustani Shehnai Wadak Bismillah Khan. Okay class, so here we end with the chapter. I hope you have understood it thoroughly. Please don't forget to click the like button and do subscribe to my channel for the further updates. Thanks a lot.